Friends, welcome to my channel. So our today's topic of subject psychology in altruism. Altruism term is defined by the scientist, or this term coined by the scientist Auguste Comte. Okay, it's an unselfish concern for other. अल्ट्रिज्म का क्या मतलब है कि अनसेल्फिश कंसर्न फॉर अदर्स. एक तो चीज़ होती है सेल्फिश, एक है अनसेल्फिश, यानी आप दूसरों के लिए अनसेल्फिश हैं. ठीक है. एक्सप्लेनेशन और थ्योरीज ऑफ अल्ट्रिज्म बायोलॉजिकल कंसेप्ट हैं इसके. किन सिलेक्शन थ्योरी प्रेडिक्ट्स दैट एनिमल्स आर मोर लाइकली टू बिहेव अल्ट्रिस्टिकली टूवर्ड्स देयर रिलेटिव्स देन टूवर्ड्स अनरिलेटेड मेंबर्स ऑफ देयर स्पीशीज़. यानी उन्होंने कहा कि जो जानवर हैं वो अपने जो उनके करीबी रिश्तेदार होते हैं या उनकी नस्ल के होते हैं उनके साथ तो वो अच्छा बिहेवियर शो करते हैं, अनसेल्फिशनेस शो करते हैं. लेकिन जो उनकी नस्ल के नहीं होते, ठीक है, या उनकी फैमिली के नहीं होते, उनके साथ वो अच्छा बिहेवियर शो नहीं करते, अल्ट्रुइज्म शो नहीं करते. सिलेक्शन फॉर बिहेवियर दैट लोअर आर इंडिविजुअल्स ऑन फिटनेस बट इनहेंसेस द रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ रिलेटिव्स. Second is Hamilton's rules. It says that quantitative measure of when natural selection will favor altruism, its mean inclusive benefit, यानी आपको inclusively फ़ायदा मिलता है. लाइक उसने लिखा आर बी लेस देन सी, यानी जितना बाकियों को फ़ायदा मिल रहा है आपको भी उससे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है. ठीक है. Next is his second neurological reasons. Altruism activates reward centers in the brain. Altruism player. जितना ज़्यादा हम अल्ट्रुइज्म करते हैं हमें प्लेयर मिलता है, खुशी मिलती है इंटरनली. यानी हम किसी की मदद करते हैं तो हम जो है वो मेंटली तौर पे हम सुकून होता है. ठीक है, खुशी महसूस करते हैं कि हमने अगले बंदे की मदद की है. Social norms, the social norms of reciprocity in the expectations that people will respond to each other in similar ways. People reward kind actions and punish unkind ones. Reciprocal altruism कहता है कि ड्राइवर ने दिया 1971 ने. इसने कहा क्या social expectation in which we feel pressured to help others if they have already done something for us. Cognitive reasons, empathy altruism hypothesis बैटसन ने दिया 1981 ने. इसने कहा empathy for others in distress leads to altruism. Altruism and empathy are both innate traits. मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस टॉपिक है हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चलें आज की टॉपिक में इसको डिस्कस करते हैं. Stress, models of stress. The stimulus-based model of stress, Holmes and Rehes ने दिया. Stress is located in the environment. The aversive environment condition in stress. When the demand in the environment exceeds the copy capacity of organism, stress appears like environment and the person. So stressor agent, stressor response. So in result that the psychological, physiological and behaviorally person affect. स्टिमुलेट जो है वो डायरेक्ट रिलेट करता है रिस्पॉन्स से. जैसा हमें स्टिमुलस मिलेगा वैसा रिस्पॉन्स देंगे, जैसी इनपुट मिलेगी वैसे आउटपुट देंगे. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अ स्टिमुलस, अ लाइफ इवेंट इन द सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट अराउजेज साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शन that may increase the individual vulnerability to illness. Holmes and Rahel developed the social readjustment rating scale SRS. Consists of 43 life changes or events which are both positive and negative in nature and considered stressful. So the response-based model of stress is Hanseley emphasizes the common psychological consequences of stressful situations like fight or flight response. Stressful situations led to arousal of sympathetic nervous system, resulting in many physiological somatic changes and finally disruptions of homeostasis. अगर आपका बैकग्राउंड साइंटिफिक है तो आपको पता होगा कि होम्योस्टेसिस क्या है, प्लांट्स में क्या होती है, एनिमल्स में क्या होती है. सो ये यहाँ पे हमारा टॉपिक नहीं है इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहे. Solis model is called General Adaptation Syndrome GAS. It's not stress that kills us, it is our reaction to it. Okay. It proposed that different types of stimuli would result in similar physical response. General adaptation syndrome theory, इसके 3 फेजेज हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3. नीचे आपके साथ ग्राफ शो किया गया. ठीक है, दरम्यान में जो डॉटेड लाइंस है ये शो कर रहा है फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3. ठीक है, इसे आपने देख लेना है कि टाइम और रेजिस्टेंस का अगर हम ग्राफ बनाएं तो किस तरह अलार्म की स्टेज आती है, किस तरह रेजिस्टेंस शो करता है एक पर्सन और किस तरह वो एग्जॉस्ट हो जाता है. ठीक है, फेज़ 1 में इनिशियल रिजल्ट होता है स्ट्रेस का, सेकंड में रेजिस्टेंस शो करते हैं, थर्ड के अंदर कोलैप्स हो जाती है जब हम बहुत ज़्यादा बीमार भी हो जाते हैं और सब कुछ जो है वो हम पे हावी हो जाता है. द ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ स्ट्रेस लेजेस और फोकमैन ने दिया. इसने कहा पीपल हैव कैपेसिटी टू थिंक, इवेल्युएट एंड देन रिएक्ट.
थिंकिंग कैन मेक स्ट्रेस आइदर बेटर और वर्स, यानी उसने कहा कि हाँ सारा हमारे दिमाग के ऊपर होता है कि वो अच्छा सोचता है तो हम अच्छे सोचेंगे, ठीक है, किसी सिचुएशन को लेके, लेकिन अगर हम उसके बारे में उल्टा सोच रहे हैं तो फिर उल्टा ही सोचते रहेंगे. लेट अस डेवलप इंटरेक्शन थ्योरी विच एम्फसाइज द अर्ली ऑफ कॉग्निशन. टू स्टेजेस अप्रेजल ऑफ स्ट्रेस. उसने कहा प्राइमरी अप्रेजल प्रोसेस होता है और सेकेंडरी अप्रेजल प्रोसेस होता है. इसमें फर्स्ट वाले में उसने कहा कि 3 आउटकम्स हमें मिलती हैं. Event regarded as irrelevant, events regarded as positive to well-being, events regarded as negative to well-being. ठीक है, नेगेटिव अप्रेजल लेड्स टू सेकेंडरी अप्रेजल. अगर फर्स्ट फेज हो गया तो फिर सेकंड फेज स्टार्ट होती है, जिसके अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल असेस देयर कॉपरिंग रिसोर्सेज लाइक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल सपोर्ट और हेल्प, नॉलेज, स्किल्स एक्सेट्रा. ठीक है, कोई बात समझ आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. ठीक है, नो इशू. Appraisal of potentially stressful events is influenced by controllability of events, predictability of events. Events are more stressful when they are uncontrollable and unpredictable. ठीक है, हम तब ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं जब हमने वो चीज़ कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की होती, वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती और अनप्रिडिक्टेबल होती, तब हम सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस फील करते हैं. होप सो कि आज के लिए इतना टॉपिक काफ़ी है. फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, स्ट्रेस के टॉपिक को लूनेस के साथ मिला के नेक्स्ट वीडियो में. सी यू सून इंशाल्लाह. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर मी इन योर प्रीशियस प्रेयर. अल्लाह हाफिज़.